Good evening, everybody. I am Manoj Kumar Chaudhary, Associate from the Nani Palkhiwala National Law Club. Welcome you all on this webinar of series of Indian Patent Act. Today we have Advocate Jay Prakash Somani, Supreme Court of India. He has around 30 years of experience in legal fraternity, and he has written more than 65 books, which is available on the Flipkart and Amazon, which is related to the case laws of the Supreme Court. Today we have a topic of Indian Patent Act 1920, which is regulated by a rule 2003. The patent is basically giving innovative ideas to a right to come to the market for 20 years as a monopoly. And then after that, that particular innovative idea go to the public for the manufacturing. So the criteria for the patentability is basically novelty. The product should be novelty. Innovative steps there should be there all. It should have industrial applications, then only you can get the patent. But there are certain infringements also come in the way of getting the patentability by some other companies. So how these case laws are dealt with the Supreme Courts, we have a today lecture on that. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Manoj. Audience, we will take this webinar in three parts. First part, the Patent Act 1970 comprehensive analysis. इसमें हम लगभग 8-10 पार्ट कवर करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे, चैप्टर्स कवर करेंगे. Then we will cover right of patent holder. Then we will cover leading Supreme Court judgment through 2, 3, 4. Then impact on trade and industry in India of this Patent Act. Then procedure for patent registration in India. Step-by-step process we will see in this part. Then key principle of patent law in India. And then I will conclude this part. So we will take this part in 9 subsections. Then after this, we will start B part. In B part, case laws compendium on the Patent Act 1970s. केस लॉज के लिए मैंने सेपरेट पार्ट लिया है. इसमें काफी 10-20 एक केस लॉज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई वांट टू गिव अ फुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेटेंट एक्ट एंड इट्स केस लॉज. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगभग वी विल कवर 7. देन हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इन्फ्लुएंशियल पेटेंट जूरिस्प्रूडेंस के लिए. सो वी विल कवर 6-7 judgments of Delhi High Court, and other high courts will cover 7 to 8 judgments. Then key themes emerging from the case laws. ये केस लॉस के कारण कौन से की थीम्स इमर्ज हुई है, ये क्लियर करेंगे और फिर इसको कंक्लूड करेंगे. एंड देन इन लास्ट पार्ट वी विल सी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन पेटेंट लॉ वर्सेस US, UK and European Union patent regimes. ऐसा कंपेयर करके भी करेंगे, बिकॉज व्हेन somebody wants to practice in patent law, so उसको इंडिया में भी पेटेंट एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन करने हैं और फॉरेन में भी करना है. तो फॉरेन में करने के एंगल से मेनली मेजर जो कंट्रीज रहते हैं, US, UK, यूरोपियन यूनियन. So you should know about comparatively their laws. So we will see comparative table. इसमें 7-8 टाइप के हम कंपैरिजन बताएंगे आपको. Then patentability standards in India, USA, UK with their case laws also. EU फार्मास्यूटिकल पैटेंट की डिफरेंस बताएंगे. सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस मेथड पैटेंट. कंपल्सरी लाइसेंसिंग, उसमें USA, UK, EU, यूरोपियन यूनियन. अपोजिशन मैकेनिज्म, एनफोर्समेंट लिटिगेशन
ये सब कुछ बताएंगे. एंड प्रोसीजर कंपैरिजन, पॉलिसी ओरिएंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड स्ट्रेटेजी एंड की डिफरेंसेस समरी में बताएंगे. देन स्ट्रेटेजिक टेक अवे फ्रॉम ऑफ बिजनेसेस, और फिर इसको कंक्लूड करेंगे. सो इतना तैयारी करके हम आपको ये प्रोग्राम दे रहे हैं. किसी को भी पेटेंट एक्ट के बारे में, पेटेंट के बारे में रजिस्ट्रेशन ये सूच करना है, यू कैन कोऑर्डिनेट टू मनोज कुमार. मनोज कुमार विल हेल्प यू डेफिनेटली. एंड इसका हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ अगर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू मनोज कुमार और थ्रू माय पीए. सो वी कैन लीड your matter, we can guide your matter for Supreme Court, we can guide in Delhi High Court, we can guide in Bombay High Court also. So first part, the Patents Act 1970. The Patent Act 1970 is a principal legislation governing patent protection in India. It provides a legal framework for granting exclusive right over invention. जो लोग इन्वेंशन करते हैं, जो लोग नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, टू प्रोटेक्ट देयर राइट एटलीस्ट 20 years, their innovations, and then incentives and public interest, this law protect in India. The act has been amended multiple times. Originally act enactment हुआ है 1970 में, but it was amended notably in 1999, 2002 and 2005 to align with ट्रिप्स एग्रीमेंट. ये ट्रिप एग्रीमेंट क्या है? ट्रिप एग्रीमेंट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप is a trade related aspect of intellectual property. Trade related aspects of intellectual property. That is called TRIPS agreement. So as per the guidance, as per the guidelines given in TRIPS agreement, we have amended this time to time. India के Patent Act के under Indian Patent Act, anybody can register. Indian companies can register, Indian persons can register, foreign persons can register, foreign companies can register. I will elaborate step by step procedure at the end of this part. So first we will see the structure of act. Total chapter ये एक्ट में 20 है. टोटल सेक्शंस आर 163. इसके रूल्स है पेटेंट रूल्स 2003. If we see the chapter wise overview of this act, so chapter 1 cover preliminary definitions, which is given in section 2. Chapter 2 covers non-patentable invention, जिसका पेटेंट नहीं कर सकते. Non-patentable invention is covered in chapter 2 in section 3. Chapter 3 and 4, application, publication and examination related to patent. Chapter 5, opposition proceedings. Chapter 8, grant and rights and patentees. I'm giving you important chapters only. Chapter 12, revocation. Chapter 16, compulsory licensing. Chapter 18, infringement suits. And chapter
23, miscellaneous provision. These are the important chapters in law. Then important sections of that act. तो ए पार्ट में हम बताएंगे आपको पेटेंटेबिलिटी एंड डेफिनेशंस इन सेक्शन 2(1)(j), डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन, सेक्शन 2(1)(j)(a), इन्वेंटिव स्टेप्स, and section 3, non-patentable invention, that is software per se, abstracts, ideas, etc. B, application and specifications. Section 6, persons entitled to apply. Section 7, form of application. And section 10, contents of specifications. Must fully describe invention, best method, and claim. Then publication and examination. Section 11A, publication of application. Section 11B, request of examination. Section 12 to 15, examination and refusal amendment. Then opposition. Section 25, pre-grant and post-grant opposition. E, grant and rights. Section 43, grant of patent. Section 48, rights of patentees. Section 53, term of patents, 20 years. Indian Patent Act 1970 is a most significant law in intellectual property regime in India. In our first episode, last episode, we have seen 8 type of different intellectual property laws. And step by step, we are covering one by one. So you will get the 9-part series. One introductory part, which cover all the acts in summary system. And then 8 act step by step we are covering. So at the end of this series, you will have entire intellectual property law with important sections, then with Supreme Court, High Court case laws, and many more. You can call it the best course related to intellectual property. This is very useful for the law student, inventive persons, corporates, governments, officers, abroad and India. So all will get it benefited. Then F, compulsory licensing. Section 84, compulsory license, and Section 92A, export of patented drugs. G, assignment and licensing. Section 68, assignment must be in writing. And Section 69, registration of assignments. H, revocation. Section 64, revocation of patent. Section 66, revocation in public interest. I, infringement and remedies. Section 104, jurisdiction. Section 107, defenses. Section 108, reliefs, injunction and damages. Then 4th part, rights of patent holder. So first right, exclusive right to exploit the invention. Under Section 48, the patentee has the exclusive right to make, to use, to sell, to import the patented product or process. This prevents unauthorized commercial exploitation. Second right, right to license or assign.
Under section 68 to 69, patents can be licensed, assigned fully or partly. These rights allows monetization of invention. Very great thing. तो आपको आपका इन्वेंशन पूरा बेचने की जरूरत है ऐसा नहीं है. You can give its license to somebody. You can charge a license fee one time or as a royalty base. You can assign that for particular year, for particular segment. You can divide that North India, South India, West India, like that. So in different way, you can monetize your invention. Part 3, right to sue for infringement. Under section 104 to 108, patentee can file civil suit, then seek injunction, then claim damages or account of profits. Obviously, civil suit file करना है तो civil court में जाएगा. Enforcement is a key component of patent protection. Other rights, right to surrender patent, section 63. Right to amend, section 57. Yes, you can amend your patent. आपने X इन्वेंशन किया, कुछ साल उसका पेटेंट कर लिया, कुछ साल के बाद उसमें अपने और अपग्रेड किया इन्वेंशन में. सो यू कैन अपग्रेड योर पेटेंट ऑल्सो. यू कैन अमेंड पेटेंट ऑल्सो. फॉर ऑल दिस यू कैन कॉन्टेक्ट टू मनोज कुमार to upgrade, to register, to look after your patent. We can help you to sell your patent also. So from registration to sell, every service you will get from JSS Supreme Legal LLP. Manoj Kumar is a partner in that LLP. I am a CEO of that LLP. I am not soliciting any work, not legal work. I am just passing the knowledge what exactly our LLP will help to the India or abroad people for patent registration to patent litigation. Okay. So now fifth part, leading Supreme Court judgments. I will cover here 4 judgments only. And in B part, I will cover you entire judgment. So some judgment will be repeated there. Novartis AG versus Union of India 2013 6 SCC 1. Principle section 2, section 3D restrict evergreening of pharmaceutical patent, reinforcement access to affordable medicines. B. Vishwanath Prasad Radhesham versus Hindustan Metal Industries 1979 to SCC 511. Principle define inventive steps and obviousness tests. CF Hopman La Roche Limited versus Cipla Limited. Primary Delhi High Court principles widely followed. Principle clarified patent infringement standards in pharma sector. D. Enercoin India Limited versus Alloy Weben 2014 5 SCC 1. Clarified jurisdiction and revocation versus infringement proceedings. Then 6. Impact on trade and industry in India. So because of this Patent Act, following are the impact. 1. Boost to innovation and R&D, research and development.
encourages investment in pharmaceuticals, biotechnology, technology sector. 2. Growth of pharmaceutical industry. India become a global generic medicine hub. Balanced patent protection with affordability via Section 3D. 3. Attracts foreign investment. Strong IP regime increases FDI inflow. 4. Technology transfer and licensing. Enables commercialization via licensing agreements, joint ventures, great things. 5. Public interest protection. Compulsory licensing ensures affordable medicines, wider access. 6. Startup ecosystem growth. Patent protection encourages innovation-driven startups, deep tech industries. 7th part, which is very important for registration of patent. So procedure for registration of patent in India, step-by-step process. Step 1, patent search. Conduct prior art search. Check novelty and inventiveness. Step 2, filling of application. तो ये जो एप्लीकेशन फिल करना है ये एज पर सेक्शन 7, फाइल अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन ऑफ पेटेंट एक्ट 1970. Types: provisional application and then complete application. Step 3, filing specification. Under section 10 must include description, claims, drawings if required. Step 4, publication. Under section 11A, publication after 18 month or early publication request. 18 month के बाद वो publish कर देते हैं, but you can request early publication also. Step 5, request for examination. Under section 11B must be filed with prescribed time. Step 6, examination and objections. Examiner reviews under the section 12 to 15. Applicant's response to objections. Step 7, opposition if any. Under section 25, pre-grant and post-grant. Step 8, grant of patent. Under section 43, patent is granted and published. Then step 9, renewal. Annual renewal fees are required. Timeline, typically 2 to 5 years depending on complexity. थोड़ा इसको स्पीड अप भी कर सकते हैं. We are sitting in Delhi, so definitely you will get better services in Delhi for all India people because we are based in Delhi. Key principles of patent law in India. First to file system, then territorial rights valid only in India, limited monopoly 20 years, disclosure requirement Q pro quo. और कंक्लूजन है इस पार्ट का, पेटेंट एक्ट 1970 plays a vital role in promoting innovation, protecting inventors' rights, balancing public interest. It has transformed India into a global hub for pharmaceuticals, technology, and innovation-driven industries, while ensuring that patent rights do not hinder access to essential goods. Part B, Case Law Compendium on Patent Act
1970 in India. Now I will elaborate Supreme Court some judgment. Novartis AG versus Union of India, citation 2013, 6 SCC 1. Principle, interpreted section 3T, prevented evergreen of pharmaceutical patents, strengthened access to affordable medicines. 2 Vishwanath Prasad Radhesham versus Hindustan Metal Industries. Citation 1979, 2 SCC 511. Principle, define inventive steps and obviousness. Mere workshop improvement not patentable. खाली वर्कशॉप में किसी ने इंप्रूवमेंट कर दिया एंड इफ इज trying to take the patent is not permissible. So what is the importance of case laws? Case laws are important to understand the practical application of law. So law is a theory and case laws is a practical. So which case laws is related to which section? So everything is there. Monsanto Technology LLC versus Nuzivedu Seeds Limited, 2019, 3 SCC 381. Patentability of biotechnology inventions, interplay between Patent Act and Seeds Act. Arecon Limited India Limited versus Alloy Owen. Citation 2014, 5 SCC 1. Principle, clarify jurisdictional overlap between revocation and infringement. Messrs. Vishwanath Prasad versus Hindustan Metal Industries. 1979 to SSC 511. Principal test of non-obviousness reiterated. Iyengar Committee's reference case, contextual influence. 6 number. Principle, though not a judicial decision, strongly influenced patent law policy. 7 Raj Prakash versus Mangatram Chaudhary. Citation AIR 1978 SC 193. Principal, patent must involve technical advancement. 2. Delhi High Court most influential patent jurisprudence. Case law number 8. F. Hoppeman La Roche Limited versus Sifla Limited. Citation 2009, 40 PTC 125 Delhi. Principle, detailed analysis of patent infringement tests. Doctrine of equivalent discussed. Equivalence discussed. Doctrine of equivalent discussed in this particular case law. So this case law is very important to understand patent infringement tests. Then 9, Merck Sharp and Dohme Corporation versus Glenmark Pharmaceuticals. 2015 61 PTC 1 Delhi. Principle, interim injunction principles in pharma patents. Bayer Corporation versus Union of India.
Citation 2014-60 PTC 277 Delhi. Principal first compulsory license case upheld. 11. Telephonetic Bolejet LM Ericsson versus Intex Technologies. Citation 2015-62 PTC 90 Delhi. Principal Standard Essential Patent SEP, that is called Standard Essential Patent, and fraud licensing. Then 12 case law, Ericsson versus Micromax Informatics Limited. Principled royalty determination in standard essential patent disputes. 13. Roche Product India Private Limited versus Cipla Limited. Principal patent validity versus public interest in medicines. Part 3. Other High Court judgments. Case law number 14. Natco Pharma Limited versus Bayer Corporation. 2013-54 PTC 225 Principal First Compulsory License under Section 84. Case number 15. Chemtura Corporation versus Union of India. ये केस लॉज में प्रिंसिपल डिस्कस किया है स्कोप ऑफ प्री ग्रांट अपोजिशन. देन केस लॉ 16 UCB Pharkim SA versus Cipla Limited. Principal validity of pharmaceutical patent. 17 Ajanta Pharma Limited versus Allergan Industries. Principal patent revocation and invalidity. Case number 18 Vringo Infrastructure Industries versus ZTE Corporation. Principal jurisdiction in patent infringement. 19 Telephotic Boletet LP Ericsson versus Lava International Limited. Principal fraud compliance in telecom patent. 20 Same Labs Limited versus Glenmark Pharmaceuticals. Principal injunction granted in pharma patent infringement. 21 case now Strick Limited versus Maharaja Appliances Limited. Principal patent infringement and damages. 22 Koning Philips Electronics versus Rajesh Bansal. Principal enforcement of SEP patent in India. Next. Fourth part, key themes emerging from case laws. So first, patentability standards, strict scrutiny under Section 3D. Innovation must show technical advancement. Public interest versus monopoly, a second key theme emerging from these case laws. Public interest versus monopoly, court balance, patent rights, access to medicines. Pharmaceutical patent dominance, majority of litigation related to drugs patent, generic competition. 4. Rise of technology patent litigation. SEP's telecom dispute increasing.
Strong injunction jurisprudence. Court actively grant interim injunction damages. And conclusion of this B part is Indian patent jurisprudence has evolved through a robust body of case laws, particularly driven by Supreme Court principles on patentability and public interest. Delhi High Court's leadership in technical patent disputes. The court have consistently aimed to prevent misuse of patent monopoly, encourages genuineness, innovation, and protect public welfare. Friends, just give me a few seconds to drink water. Before turning to part 3, comparative study of Indian patent law with US, UK, and European Union patent regime, I want to just upgrade information because our JSS firm, law firm is now LLP. JSS Supreme Legal LLP. Long form of JSS is Judicious Strategic Advisory Solutions. Now we are focusing on Supreme Court matters. We have 16 associates with 6 AOR. We are focusing Supreme Court matters related to corporate, civil, property, service matters, civil, criminal, all. But gradually, in yesterday's meeting, we have decided to expand. So within a month or two, we are starting our branch at Bombay, which will look after Bombay High Court, then appellate tribunals in Bombay, and that Bombay branch will look after the Bombay areas matter for Supreme Court also, for NCALT also, and for NCDRC also. All appellate tribunal of Delhi, Bombay side matter will be looking after by Bombay branch. सब बॉम्बे ब्रांच से चलेगा. मेरा पहला बॉम्बे हाईकोर्ट में काम करता था, तब ऑफिस था परेल में. जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने शिफ्ट हो गया तो 2018 में, तब हमने वो किराए से दे दिया. लेकिन अब जब लगा तब हम वापस उसको ले रहे हैं हमारा ऑफिस को. परेल में हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर रोड के ऊपर रंगोली कॉम्प्लेक्स में 4th फ्लोर पे ऑफिस है. ये हम 1-1.5 महीने में शुरू कर रहे हैं वापस. और ये सब जितना बताया मैंने उतना एक्टिविटी वहां से चलेगा. दैट सेकंड अपग्रेडेशन, हमारा जो दिल्ली ऑफिस है, जो खाली सुप्रीम कोर्ट फोकस करता था, सुप्रीम कोर्ट तो फोकस करेगा. आई विल पर्सनली आर्ग्यू ओनली इन सुप्रीम कोर्ट. बाकी जगह पे हमारे पैनल रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन हमारा पूरा ख्याल रहेगा. बिकॉज बहुत लोग उम्मीद से आते हैं, बहुत कष्ट का पैसा खर्चा करते हैं, तो दे शुड गेट रिजल्ट. हम 200% कोशिश करते हैं. आफ्टर ऑल कभी कभी केस डिसमिस हो जाता है, वो तो क्लाइंट को पता रहता है कि सोमानी सर ने और इनके टीम ने मेहनत तो बहुत अच्छा लिया, इसलिए क्लाइंट कभी केस डिसमिस होता है तो भी नर्वस नहीं होता है. वो बोलता है साहब आपने मेहनत बहुत अच्छा लिया, हमने देखा आपने मेहनत क्या लिया. इसलिए हम 200% एफर्ट्स लेते हैं. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस के साथ साथ दिल्ली ऑफिस जो हमारा मेन ऑफिस है, ये दिल्ली हाई कोर्ट फोकस करेगा. ऑल टाइप ऑफ मैटर्स इन दिल्ली हाई कोर्ट, appellate as well as original jurisdiction like writ petition like that, same as Bombay High Court. उसके साथ साथ हमारे पास अलग टेबल रहेगा जो NCALT, NCDRC, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो मैटर है ये भी देखेगा.
हमारे पास सीनियर लॉयर का भी एक पैनल रहेगा. इफ एनीबडी वांट टू हायर सीनियर लॉयर, यस वी आर देयर टू प्रोवाइड दैट. जस्ट लॉ फर्म का हमारा एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटीज जो हम अपग्रेड कर रहे हैं, जस्ट आई वांट टू पास दैट इंफॉर्मेशन. आई एम नॉट सॉलिसिटिंग, just giving information regarding our upgrading activities. और फॉरेन की जो भी एमएनसीज हो गए या इंडिया के जो कंपनीज जो एमएनसी बनी है, उनको कुछ भी हेल्प लगती है, कुछ भी हेल्प लगती है तो भी होगा. ये हमारा इमीडिएट इफेक्ट से हम ये एक्सपेंशन सब कर रहे हैं. और आफ्टर 3 to 4 months then we are expanding our services, our LLP JSS Supreme Legal LLP services to Rajasthan High Court, then to Uttar Pradesh High Court, then Gujarat High Court, then Karnataka High Court, West Bengal High Court, Tamil Nadu High Court. ये हमारा अगले 6 महीने का एक्सपेंशन का प्लान है. एंड टिल द एंड ऑफ दिस ईयर और 2, then we will start our services at remaining high court places. तो ये सब चीजें दोस्तों आपको बताना है. बताने का उद्देश्य एक है कि जो बड़ी लॉयर हैं जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं. सीनियर काउंसिल है, पैनल पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं. और भारत की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाना, पेटेंट को अच्छा बनाना, सबसिस्टिंग को अच्छा बनाना, किसी के ऊपर अन्याय होता है वो अन्याय दूर करना, अन्याय होने नहीं देना, ये जो दीज आर दी पिलर्स ऑफ आवर एथिकल लीगल प्रैक्टिसेस जो हमने आज किया है, अभी तक किया है. 1989 में मेरा सनद है, अभी 2026 चल रहा है. इतने साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जो है, हर एक दिन मुझे एक अलग अलग लेवल प्राप्त हुआ है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी बन गया मैं लॉ का. एंड ड्यू टू दिस पैशन ऑफ टेकिंग वेबिनार्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, it gives me compulsory push to study that particular law. तो कितने एस्पेक्ट से हम लॉ पढ़ते हैं, कितने एस्पेक्ट से पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके वेबिनार ले सकते हैं. सो इफ एनीबडी वांट टू अरेंज दिस वेबिनार एट लॉ कॉलेजेस या बार काउंसिल के लिए करना चाहते हैं, एंड ऑन एनी सब्जेक्ट आई कैन डिलीवर वेबिनार. More than 500 videos of mine are on YouTube channel जयप्रकाश सोमानी, या जय सोमानी 64 डालेंगे तो भी YouTube चैनल है. तो आप किसी भी बोल सकते हैं. और आई कैन डिलीवर इन मिक्स लैंग्वेज ऑल्सो, हिंदी इंग्लिश. महाराष्ट्र के लोगों को चाहिए तो मराठी में भी बात कर सकता हूँ, कारण मी मराठी आहे. रेस्ट ऑफ इंडिया हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं, ओनली इंग्लिश भी कर सकते हैं, नो इश्यू. खाली ओनली हिंदी नहीं जमेगा या ओनली इंग्लिश नहीं, मराठी नहीं जमेगा, क्योंकि हम प्योर भाषा बोलना भूल गए हैं. ये अच्छी बात है, बुरी बात है, आई डोंट नो. हाँ, इतना मैं यकीन के साथ बोलूंगा, इंग्लिश ये ब्रिटिश की लैंग्वेज थी पहले, लेकिन आज इंग्लिश ये इंडियन लैंग्वेज. कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इट. सो नो बडी शुड एनवे इंग्लिश. प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपनाया है. और इंग्लिश अच्छा रहने के कारण हम भारतीय लोग पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं. इसलिए जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो कभी कभी इंग्लिश के खिलाफ रहता है. मैं इंग्लिश के फेवर में हूं ऐसा भी नहीं, इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूं ये डेफिनेटली. फेवर में तो मैं मदर टंग में ही हूं, हिंदी मराठी. इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं है, लेकिन इंग्लिश मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, मेरी कोर्ट की लैंग्वेज है. पहले भी कोर्ट की लैंग्वेज थी, हाई कोर्ट में काम करता था बॉम्बे में, तब सेस्टैट का मैं लाइफ मेंबर हूं बॉम्बे का, वहां पे भी इंग्लिश में ही चलता था.
बाद में एनसीएलटी एनसीएएलटी में भी हमने कुछ दिन काम किया, वहां पे भी इंग्लिश ही चलता है। और सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली इंग्लिश ही चलता है। एक जस्ट आई वांट टू अपग्रेड रिलेटेड टू आवर एक्टिविटीज, रिलेटेड टू आवर। और हमने अभी, आपने देखा होगा, हमारा जो नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब का ऑफिशियल 1, ऑफिशियल 2 ग्रुप है, और लाइफ मेंबर का ग्रुप अलग है। लाइफ मेंबर को थोड़े अलग फैसिलिटीज मिलते हैं। लाइफ मेंबर बनना हमारे नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब का खाली 500 रुपए में 20 साल के लिए आप मेंबर बन जाते हैं। खाली 500 रुपए, तो आप मनोज कुमार को कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। और बाकी ऑफिशियल 1, ऑफिशियल 2 के मेंबर बनने के लिए आपको कोई फी नहीं भरनी पड़ती, खाली वो लिंक रहता है पोस्ट में। जो भी पोस्ट हमारा आता है उसमें लिंक रहता है, वो लिंक से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी ऑफिशियल 1 या ऑफिशियल 2, दोनों में से किसी भी एक का ग्रुप मेंबर बन गए तो काफी आपको ये मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। और ये वीडियो पब्लिश होने के बाद ये आ जाएगा वहां पे शेयर होगा, ऑफिशियल 1, ऑफिशियल 2 में। तो आपको पता चल जाएगा ये यूट्यूब पे आ गया है। तो जब चाहे आप उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपने अपने हिसाब से, या ड्राइविंग करते करते आप लगा के ऑडियो में आप इसको सुन सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जो पार्ट बी है ओनली केस लॉस का, उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। यही तो उद्देश्य है हमारा। बस हम हमारे काम में लगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ समय निकाल के भारत के अगर लीगल फ्रेटर्निटी को हम कुछ दे सकते हैं, तो बस यही हमारी कोशिश है। बस इतना ही। नाउ आई एम टर्निंग टूवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, कंपैरेटिव स्टडी इंडियन पेटेंट लॉ वर्सेस यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन पेटेंट रीजन्स। Introduction. Patent system across jurisprudence aims to balance innovation incentives with public interest, but they differ significantly in patentability standards, enforcement, and policy orientation. India follows the Patent Act 1970, while the US, UK, and EU operates under US Patent Act, UK Patents Act 1977, एंड यूरोपियन पेटेंट कॉन्वेंशन। क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक अलग, मोर देन 20 कंट्रीज का एक यूनियन है वो। पहले 27 कंट्रीज थे, वो कम ज्यादा होता रहता है, कदा छोड़ता है, कदा आता है वो कंट्री में। मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेक्चर में काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगे आपको इंटरनेशनल लेवल की। मेरे बहुत सारे लेक्चर हुए हैं, बहुत काम किया है मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। मैं एलएलबी के साथ एमबीए इंटरनेशनल ट्रेड भी हूँ, तो उसके काफी वीडियो मिलेंगे, काफी कोर्सेज भी मिलेंगे आपको। एंटायर फुल कोर्स मिलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरे ऐप के ऊपर। विजय प्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐप है हमारा। और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप श्रुति कीर्ति को या हमारे वेबसाइट पे जाके सब देख सकते हैं, या हमारा कोई भी लेटेस्ट यूट्यूब का वीडियो है ना, उसमें आपको हमारे ऐप के एक्सेस वगैरह सब लिंक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो नाउ आई एम एलिब्रेटिंग यू कंपेरेटिव टेबल कोर फीचर्स का। इसमें मैंने कॉलम किए हुए हैं फीचर्स, देन इंडिया, यूएस, यूके एंड ईयू। सो गवर्निंग लॉज, फीचर अगर गवर्निंग लॉ लेते हैं तो इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 है, यूएसए में टाइटल 35 यूएससी ऐसा है, यूके में पेटेंट्स एक्ट 1977 है, और ईयू में ईपीसी यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन ऐसा है। पेटेंट का टर्म अगर फीचर लेते हैं तो इंडिया में 20 ईयर्स है, यूएसए में 20 ईयर्स है, यूके में 20 ईयर्स है, और ईयू में 20 ईयर्स है। देन फाइलिंग सिस्टम अगर देखते हैं तो इंडिया में फर्स्ट टू फाइल, यूएसए में फर्स्ट टू फाइल पोस्ट एआईए, यूके में फर्स्ट टू फाइल, एंड ईपीसी में फर्स्ट टू फाइल। पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर देखते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन 3, यूएसए में ब्रॉड है, यूके में मॉडरेट है, और ईयू में भी मॉडरेट है।
सॉफ्टवेयर पेटेंट की बात करते हैं तो इंडिया में नॉट पेटेंटेबल पर से, यूएसए में अलाउड है, यूके में अलाउड है टेक्निकल इफेक्ट्स, एंड ईयू में अलाउड है टेक्निकल इफेक्ट्स। फार्मा पेटेंट स्ट्रिक्ट सेक्शन 3D लिबरल है। फार्मा पेटेंट्स भारत में स्ट्रिक्ट सेक्शन 3D है, यूएस में लिबरल है। इसलिए काफी इंडियन फार्मास्यूटिकल्स भारत में तो पेटेंट फाइल करते हैं लेकिन यूएस में करता है, बिकॉज देर आर लिबरल। मॉडरेट है यूके में और यूरोपियन यूनियन में मॉडरेट है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग इंडिया में स्ट्रांग है, यूएस में रेयर है, यूके में लिमिटेड है और ईयू में लिमिटेड है। प्री ग्रांट अपोजिशन इंडिया यस, यूएसए नो, यूके नो और ईयू नो, प्री ग्रांट अपोजिशन में। देन पोस्ट ग्रांट अपोजिशन इंडिया यस, यूएस यस, यूके लिमिटेड एंड यूएस। ऐसा कंपैरेटिव चार्ट है। ये सब स्टडी मटेरियल के साथ वगैरह चाहिए तो आपको ये यूट्यूब पे खाली इसका वीडियो मिलेगा। स्टडी मटेरियल के साथ चाहिए तो ये सब के सब जो 7 पार्ट 9 पार्ट जो हम कर रहे हैं, ये पूरा की पूरा कंप्लीट सीरीज होने के बाद विल अपलोड दिस इनटू आवर ऐप। और ऐप पे कोर्स के फॉर्म में हो रहेगा और नॉमिनल एक 1500-2000 रुपए इसका लाइफ टाइम फी रहेगा और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। तो उतना भरेंगे तो आपको फिर स्टडी मटेरियल, लॉ, एवरीथिंग के साथ वीडियो वीडियो और एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। लाइफ टाइम का मतलब एक 10-12 साल ऐसा पकड़ के चलो आप उसको। लाइफ टाइम का मतलब लाइफ टाइम ऐसा नहीं होता है। जैसा हमारा लाइफ मेंबरशिप नानी पालकी वाला का 20 साल का है, तो ये जब तक हमारा ऐप है, जब तक वो चालू है तब तक चलता रहेगा। आपको एक बार भरने के बाद पैसा भरना नहीं वापस। बट हर हर एक ऐसे काफी कोर्सेस है मेरे इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कोर्स है। हाउ टू इंक्रीज इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर आर्ग्यूमेंट, लीगल आर्ग्यूमेंट कोर्स है। छोटे छोटे कोर्सेस है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तो एक्सटेंसिव कोर्स है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेने का कोर्स अलग है, इसका मार्केटिंग के कोर्सेस अलग है, सब कोर्सेस अलग है। कॉम्बो भी पैकेज ले सकते हैं। आप जाइए ऐप पे देखिए, कुछ डिफिकल्टी तो आप श्रुति कितनी उसकी इंचार्ज है, उसको कांटेक्ट कर लीजिए। सबके नंबर विंबर आपको हमारे ग्रुप में मिलता है। हमारा जो ऑफिशियल 1, ऑफिशियल 2 व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे मिल जाएंगे। 3 पेटेंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। अभी पेटेंटेबिलिटी स्टैंडर्ड जो है, अभी इसके ऊपर हम चारों देश की बात करेंगे। इंडिया पेटेंटेबिलिटी स्टैंडर्ड के बारे में। इंडिया गवर्न्स बाय सेक्शन 21J इन्वेंशन एंड सेक्शन 3 एक्सक्लूजन्स। strict exclusion under section 3D for pharma. Key case Novartis AG versus Union of India 2013 6 SCC 1 prevents evergreen of patents. B USA, हम बात कर रहे हैं पेटेंटेबिलिटी स्टैंडर्ड की। यूएसए में ब्रॉड पेटेंट eligibility under section 35 of USC 101. However, judicial restrictions are there. And key case है वहां का Allies Corporation versus CLS Black International. CLS Bank International, not Black, Bank International. Citation 573 US 208. इसका प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सॉफ्टवेयर नॉट पेटेंटेबल विदाउट इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड केस लॉ एंड वेरी फेमस इन यूएस। नाउ यूके based on EPC principles requires technical contributions.
Key case, Aerotel Limited versus Telco Holdings Limited. Establish structured test for patentability. Or D, EU, European Union, governed by EPC Article 52. European Patent Convention, EPC, European Patent Convention, Article 52, govern it. Focus on technical character. Key case T641/00, COMVIK approach. Only technical features considered for inventive steps. 4. Pharmaceutical patent. A key difference. मैंने 2 कॉलम किए यहाँ पे, जुरिडिक्शन एंड अप्रोच. मैंने इसके ऊपर ब्लॉग लिखे. ब्लॉग भी आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर कुछ दिन के बाद देखने के लिए मिल जाएंगे. हमारे वेबसाइट के ऊपर काफी ब्लॉग मिलेंगे. jayprakash-somani.com पे जाइए या सुप्रीम कोर्ट लॉ फर्म.com पे जाइए. यू विल फाइंड सो मेनी ब्लॉग्स. जो आपको इंटरेस्ट का है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ब्लॉग में मिल जाएंगे ये सब. मैं पहले कोई भी लेक्चर के पहले मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल तैयार करता हूँ, ब्लॉग तैयार करता हूँ, फिर वेबिनार लेता हूँ, फिर ब्लॉग वो हम ग्रेजुअली पब्लिश करते हैं. जैसा टाइम मिलेगा, जैसा हमारा अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए लॉ फर्म में. और वो करने के बाद फिर पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद फिर जैसा टाइम मिलेगा वैसा हम उसको ऐप पे लाते हैं कि जो फिर लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहता है और यूज स्टडी मटेरियल सबसे रहता है. So, pharmaceutical patent key difference, jurisdictional and approach. India, very strict, section 3D. USA, liberal, incremental invention allowed. UK and EU, moderate. Indian position, incremental invention must show enhanced efficacy. Protest public health and generic industry. जिनके लिए जो पहले बार अभी पेटेंट का ऐसा कुछ सुन रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग, दर्शक लोग पहले बार सुन रहे हैं, तो ये पहले बार में दिमाग में आने जैसी चीज नहीं है. You have to watch this again and again, then you can get the idea. हाँ, इतना बोलता हूं मैं, जब आप पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लॉ में इंटरेस्ट लेते हैं तो यू विल बी अ वेरी ब्राइट पर्सन. मेंटल एक्सरसाइज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के इंडस्ट्री का नॉलेज आ जाता है, इन्वेंशन का आ जाता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है. यही फायदा हमको लॉयर को भी होता है. जब हम कोई केस लड़ते हैं तब एक एक कॉन्सेप्ट का किस निकालते हैं. मालूम नहीं रहता तो क्लाइंट को बोलते हैं, समझा हमको ये क्या है. जो 2D स्पेक्ट्रम का केस चल रहा था, 2D स्पेक्ट्रम का केस चल रहा था, तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को स्पेक्ट्रम क्या है समझ में नहीं आ रहा था. सो दैट टाइम कम से कम उसके 2-3 दिन गए उस स्पेक्ट्रम समझ में. व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आपको मालूम है स्पेक्ट्रम क्या है? ऐसे ही मालूम नहीं था, मुझे नहीं था, जजेस को नहीं था. लेकिन फिर टेक्निकल लोग, होशियार लोग हम बुलाते हैं, उनसे सीख लेते हैं सब कोर्ट में, बोलते हैं उनको समझाओ हमको स्पेक्ट्रम क्या है. जीपीएस किसके ऊपर चलता है? स्पेक्ट्रम के ऊपर चलता है, इंटरनेट के ऊपर नहीं चलता है. स्पेक्ट्रम अलग चीज है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, इंटरनेट अलग है. और कुछ ऐसे इन्वेंशन अभी भी बाकी है जो दुनिया ढूंढ रही है, डेवलप कर रही है. चलो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे और आगे बात करेंगे. इंडियन लॉ सेक्शन 3 के एक्सक्लूड्स algorithms, business methods much stricter than US and UE. Pharmaceutical के बारे में हम. So now software and business method patent. India not patentable per se. USA allowed with limitations. UK UE allowed if technical effect shown.
Then compulsory licensing. India, strong provision under Section 84. Used in public interest. Case Bayer Corporation versus Natco Pharma Limited. First compulsory license for cancer drug. बहुत अच्छा केस लॉ है. यूएसए, यूके एंड ईयू. कंपल्सरी लाइसेंस के बारे में यूएसए, यूके एंड ईयू. रेयरली यूज्ड, मोस्टली theoretical or emergency based. 7. Opposition mechanism. इसका कंपेरेटिव चार्ट है. टाइप इंडिया, यूएसए, यूके एंड ईयू. तो प्री ग्रांट अपोजिशन मैकेनिज्म जो है, प्री ग्रांट इंडिया यस, यूएसए नो, यूके नो, यूरोपियन यूनियन नो. पोस्ट ग्रांट इंडिया एस, यूएसए एस, UK limited, EU S. India has the strongest opposition system. 8. Enforcement and litigation. India, civil suits under patent law. Growing jurisprudence in high courts. और हाई कोर्ट के बाद हमारे कोर्ट में आता है. When substantial question of law is there. Under Article 136. लेकिन जैसे जैसे पेटेंट के केसेस बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे पेटेंट के लिए सेपरेट ट्राइब्यूनल भी एस्टैब्लिश होंगे. जैसे अभी कंपनी लॉ के ट्राइब्यूनल अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्राइब्यूनल अलग है, इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल अलग है. तो ये इसका सब पहले बैंकिंग के ट्राइब्यूनल अलग है, डीआरटी वगैरह. तो पहले सब सिविल कोर्ट में चलता, तो सिविल कोर्ट में बहुत लोड होता था. अभी अलग अलग ट्राइब्यूनल होने के कारण क्या है, इसके ऊपर हम एक वेबिनार लेंगे, इंडियन लीगल सिस्टम के ऊपर. कितने ट्राइब्यूनल है, क्या है, क्या है, सब लिखिए जरूर. अब डालते रहो, ग्रुप में डालते रहो, आपको किसकी जरूरत है, या ये जो कमेंट रहते हैं यूट्यूब पे उस पर डालते रहो, आपको क्या चाहिए. आप हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप पे जो एडमिन है उनको भेजते रहो कि भाई इसके ऊपर एक वेबिनार लो, इसके ऊपर वेबिनार, तो हम उसका लिंक लगाएंगे. और अगले अभी जून एंड तक को हमारा पूरा सिस्टम फाइनल है. नानी पालकीवाला के जो खंदे 2 कार्यकर्ते मेरे साथ हैं, वो एक मनोज कुमार है जो नेशनल कन्वीनर है, और दूसरी है श्रुति कीर्ति जो नेशनल सेक्रेटरी है. तो दोनों को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. तो हर हफ्ते में 2 प्रोग्राम हो रहा है नानी पालकीवाला के, आपके अपग्रेडेशन के लिए, और आपके साथ साथ हमारा अपग्रेडेशन हो जाता है. ये भी अच्छी बात है. मैंने पहले ही बोला, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम अच्छे विद्यार्थी बनते जा रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी बनते हैं लॉ के. और बस जो हम जानते हैं वो आपको आपके तक पहुंचाते हैं, बस इतना ही है. Enforcement and litigation, India, civil suit under patent law, growing jurisprudence in high courts. Key case, Enerco India Limited versus Alloy Weber 20145 SCC 1. Enforcement and litigation मैंने इंडिया का बताया. यूएसए में क्या सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट, हाई डैमेजेस एंड ज्यूरी ट्रायल्स. यूके एंड ईयू में स्पेशलाइज पेटेंट कोर्ट्स, जो मैंने अभी बात किया था ट्राइब्यूनल की. यूके में, यूए में ऑलरेडी स्पेशलाइज पेटेंट कोर्ट्स हैं. ईपीओ, यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन, नहीं ये अलग है. यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन अलग है. ईपीओ सेंट्रल ग्रांट का है, हाँ, बट नेशनल एनफोर्समेंट है यूके में और ईयू में. 9. प्रोसीजर कंपैरिजन. अभी प्रोसीजर कंपैरिजन बताता हूं मैं आपको. इसमें 4 कॉलम है, स्टेज इंडिया, यूएसए एंड यूके एंड ऑब्लिक ईयू. तो स्टेज फाइलिंग इंडिया यस, यूएसए एस, यूके ईयू एस. पब्लिकेशन इंडिया 18 months, यूएसए 18 months, यूके एंड ईयू 18 months. Examination India on request, USA automatic and UK EU automatic. Grant time India 2 to 5 years,
USA 2 to 4 years, and UK and EU 2 to 4 years. India requires request for examination. Then 10वां पॉलिसी ओरिएंटेशन. पॉलिसी ओरिएंटेशन में 2 कॉलम मैंने किए हैं, जुरिडिक्शन एंड पॉलिसी फोकस. इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट प्लस एक्सेस टू मेडिसिन. USA innovation and commercialization, and UK EU European Union balanced approach. 11 impact on business and strategies. India ideal for generic pharma companies, cost sensitive innovation. USA strong protection, high tech companies, software and biotech. UK and EU balanced manufacturing and engineering sectors. 12 key differences summary में दे रहा हूं मैं अभी. Key differences. India is unique because strict patentability section 3, strong compulsory licensing and pre-grant opposition. USA is unique based because broad patent scope, high damages, strong enforcement. UK and EU are unique because technical effect requirement and harmonized system, EPO. And 13, strategic takeaway for businesses. Pharma companies prefer India for generics. Tech companies prefer US for border protection. Global firms file multiple jurisdictions. Global firm means MNCs, multinational companies, file multiple jurisdictions. Patent strategy must be jurisdiction specific. Conclusion, Indian patent system under the Patent Act 1970 is distinctly public interest oriented, particularly in pharmaceuticals, while the US and EU system are more innovative driven and market oriented. A comparative understanding helps businesses optimize patent filing strategies, reduce litigation risk, maximize ग्लोबल आईपी प्रोटेक्शन. दोस्तों, ये आज का वेबिनार हुआ. थोड़ा जो सब्जेक्ट है ये हमारा रूटीन का नहीं है, इसलिए जनरल पब्लिक को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ऑडियंस कम रहेगा. तो स्पेशल लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल सब्जेक्ट देना भी जरूरी रहता है, लेकिन हम किसी भी हालत में सीरीज कंप्लीट करेंगे. गए टाइम में फर्स्ट एपिसोड था जिसमें हमने 88 पेटेंट लॉ, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डिस्कस किए. टुडे उसमें का एक जो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, वो पूरा की पूरा हमने 3 पार्ट में कवर किया, और अगले पार्ट में आने वाले हैं अगले. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम पूरा की पूरा सीरीज कवर करेंगे. फिर इसका कोर्स रूप में हम डालेंगे भी. लेकिन जो लाइव जुड़ते हैं ना, उनको इसका फल अलग ही मिलता है. रिकॉर्डेड देखेंगे तो भी फल मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली. दोनों का इफेक्ट एक ही है. खरे लाइव में हम घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठते हैं, देखते हैं, और जब रिकॉर्डेड देखते हैं तभी 5 मिनट अभी देखा, 10 मिनट बाद में देखा, बाद में. तो ऐसा देखना पड़ता है, क्योंकि इतना बाद में रिकॉर्डेड पे हम उतनी इफिशियंसी नहीं रखते वो देखने की. और बाकी भी काम रहते हैं, हमें इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, लॉयर रहते हैं. हाँ, स्टूडेंट लोग थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं इसमें. बस अभी कोई अगर सवाल पूछेगा कि भाई पेटेंट का ये जो रिजिम है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, ये लीगल प्रैक्टिस के लिए कैसा है, या रजिस्ट्रेशन वगैरह पेटेंट के लिए करना कैसा है, या एक प्रैक्टिस के एंगल्स हैं, तो मैं बोलूंगा मेहनत है इसमें, डेडिकेशन लगता है. इसके साथ साथ आप बाकी लिटिगेशन की भी प्रैक्टिस करो, उसके साथ साथ ही करो. और जब आपको लगेगा नाउ यू आर मास्टर इन दिस,
नेशनल इंटरनेशनल लेवल का आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप वर्ल्ड पूरे दुनिया में घूमते रहेंगे। एंड दैट टाइम यू हैव टू फोकस ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। अभी तो शुरू में आपको इंडिया, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, ये फोकस करना है। और बाद में आपको जर्मन है, फ्रांस है, तो जर्मन फ्रांस तो यूरोपियन यूनियन में ही आ जाएगा। लेकिन इधर के हमारे जापान है, कोरिया है, इनका भी देखना पड़ेगा। ये इनके कंपनी के भी यहाँ पे पेटेंट रजिस्टर होते हैं, यूएस में होते हैं, हर जगह पे होता है। तो जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं ना, तो वर्ल्ड एक कंट्री हो गया अभी, और एक कंट्री वर्ल्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल एटमॉस्फेयर। कोविड के बाद पूरा ऑनलाइन ज्यादा आ गया, कोड ऑनलाइन लगने होने लगे, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑनलाइन होने लगे, तो काफी हम साथ में आ गए। इसलिए अभी यार थोड़े बहुत युद्ध होते रहते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। किसी देश को इकोनॉमी चलाना है इसलिए वो युद्ध करवाती है, किसी देश को जबरदस्ती युद्ध में खींचा जाता है, वो बात अलग है, वो छोड़ दो। लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं तो हर देश प्रोग्रेस चाहता है। एवरी कंट्री विश टू प्रोग्रेस रैपिडली, and progress is definitely depend upon your innovative ideas. So focus on inventions. Government should give the grants, some incentives for innovative peoples. मुझे तो लगता है गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए कि 10 से आगे जिसके पास पेटेंट है उसको कुछ ना कुछ ग्रांट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने देना चाहिए। फालतू के इतने ग्रांट देते हैं, रास्ते करते हैं, 31 मार्च को वो फंड खत्म करने के लिए रास्ते पे वापस रास्ते करते हैं। ऐसा फालतू का पैसा इतना खर्चा किया जाता है हमारे देश में। लेकिन इनोवेशन के लिए अगर फोकस करते हैं, जिस कॉलेज से 2 या 3 भी पेटेंट लेने वाले बच्चे तैयार हो जाते हैं, वो कॉलेज में भी एक रिसर्च लैब गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इसलिए आप लोग आगे आइए, हमको पॉइंट्स लिख के भेजिए, हम रिप्रेजेंटेशन तैयार करके गवर्नमेंट को देंगे। हम आपका हर चीज गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, क्योंकि हम हमारे देश को ऊंचा लेवल तक देखना चाहते हैं। ऑलरेडी काफी ऊंचा गया है देश, और ऊंचा देखना चाहते हैं। और हम हमारे देश के साथ साथ बाकी देशों को भी ऊंचा देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर आदान प्रदान अलग अलग देशों का होता है, इकोनॉमी घूमती है, फ्रेंडशिप होती है। अभी देखो कितने देशों में हम वीजा फ्री जा सकते हैं। अभी पहले नहीं जा सकते थे, अभी आहिस्ता 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 हो रहा है। पहले ये प्रिविलेज खाली जिसके पास यूएस का या कनाडा का पासपोर्ट होता था, सबसे ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस मिलता है जापानी पासपोर्ट के ऊपर, सबसे ज्यादा। 2 नंबर पे यूएस पासपोर्ट है, 3 नंबर पे कनाडा है, ऐसे यूके है। भारत तो बहुत पीछे पीछे आता था, 5-6 कंट्री छोड़ के किधर भी वीजा फ्री एंट्री नहीं थी। अभी 35-40 के आगे गए कंट्री जहाँ पे वीजा फ्री एंट्री आपको है। ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, अपनी जगह हम तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितनी ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें। हम खाली लीगल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करना हमारा उद्देश्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ टू मोटिवेट द इंडस्ट्री, टू मोटिवेट द इनोवेटिव आइडियाज। और इनोवेशन के लिए ना दोस्तों, सोचना, सोचते रहना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए दिन में आधा घंटा 1 घंटा तो भी ऐसा निकालो कि जिस समय आप पढ़ भी नहीं रहे, सो भी नहीं रहे, लैपटॉप नहीं देख रहे हैं, मोबाइल नहीं देख रहे हैं, किसी के साथ बात भी नहीं कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, सो भी नहीं रहे, रेस्ट भी नहीं रह रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं और विचार को खुला छोड़ दिया है, तो फिर देखो इनोवेटिव आइडिया कितने आते हैं। यू विल गेट ग्रेट इनोवेटिव आइडियाज। बस इतना ही मैं देना चाहता हूं आज के लिए। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग मनोज टू अनम्यूट योर सेल्फ।
and conclude this session. Thank you very much, sir, giving us such a enlightenment on the Indian Patent Act, covering from the Indian perspective, different patent criteria, then different types of patent. Then we have a non-patent innovations that which cannot be patented. Then what are the different processes that is required for the patent, and comparing the statute of the Indian patent law with US, UK, and Europe, the developed country. And we are the signatories of the WIPO, which is basically a World International Intellectual Property Organizations. And we are following the guidelines of the TIPS for our statute. It's a very enlightenment for us. Thank you very much, sir. And thank you all the participants to be here for this particular lectures. मनोज, Thank you. इतने से काम नहीं चलने वाला. Yeah. हमको प्रॉमिस करना होगा भारत के सब लोगों को कि वी विल सपोर्ट यू फ्रॉम पेटेंट रजिस्ट्रेशन टू सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल लिटिगेशन तक पूरा हम सपोर्ट करेंगे. ऐसा हमको प्रॉमिस करना होगा. तो फिर लोग इनोवेटिव आइडिया लड़ेंगे और लगाएंगे, इनोवेशन करेंगे. देन वी हैव टू तो हमको अलग अलग इसके ऊपर थोड़े वेबिनार लेने पड़ेंगे और हमको पॉडकास्ट भी लेने पड़ेंगे इसके ऊपर. तो थोड़ा सा आपको इसको ब्रॉड बनाना होगा और पूरे भारत के लोग, ये देखो, जो इनोवेटिव आइडिया डेवलप कर रहे हैं वो पेटेंट ले लेंगे, बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. भारत में जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट लोग हैं, उसमें के 10% लोग हैं कि जो अलग से सोचते हैं. और वो 10% में भी खाली 10% ही है, यानी कि टोटल परसेंट में 1% है कि जो ये रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहा है. तो ये जो बेस है ना, वी हैव टू इंक्रीज दैट बेस. वी हैव टू मोटिवेट जनरल पीपल आल्सो टू थिंक इनोवेटिवली and then write down on paper that invention. And if that invention is innovative, it is not registered earlier, that step is given in registration process. That time, then we can register it. And register करने के बाद उनको किसी को अगर लाइसेंसिंग करना है, किसी को बेचना है अपना इन्वेंशन, तो यहां तक भी हमारा हेल्प होना चाहिए हमारे लॉ फर्म का उनको. ऐसा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से हमको देखना होगा, तब जाके हमारे जो आज के एफर्ट हैं ये काम आएंगे. सो बस जस्ट आई वांट टू अपील, गिव अपील. मैं हूं साथ में, बिकॉज हम साथ में ही काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम हैं साथ में, लेकिन उसके साथ साथ हमको थोड़ा सा एक डिवोशन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे ज्यादा देना हो. एंड आई होप you will work hard on this, and you will give the justice to a person who want to register his innovative ideas and who want to protect his innovative ideas by taking different type of registration protection, not only in India but also US, UK, European Union, बाकी countries में भी. और जितनी इंडस्ट्री है उनके तक जाने दो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जाने दो, जनरल जो हमारी इंजीनियरिंग कंपनीज रहे इनको जाने दो, का रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जाने दो, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसका लार्ज स्केल है, इसलिए ये वीडियो जब यूट्यूब पे आएगा, इसका लिंक आएगा, तो फोकस रखना है 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यू. आवर दिस वीडियो should be shared to this different segment so that they can watch it, they can get awareness about that, they can minimize their expenses, they can maximize their profit. ये सब चीजें हमको करेंगे. तो इतने ब्रॉड एस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा काम करेंगे. इसके लिए रोज का कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर देना होगा, उसका प्लानिंग करना होगा, सब कुछ करना होगा. ठीक है? ओके, थैंक यू. Thank you, participants.